Good evening, sir. Good evening, good evening, good Good evening, evening, sir. good evening, good Mm, evening. Sir, namaskar, sir. Namaskar ji, namaskar. Good evening, Well, sir. Good evening. Good good evening, evening. sir. Good evening. Yeah, good evening. Welcome to today's counseling session. Before that, I would like to share some of the things with you. Uh, from 27th May 2021 to till the date, I have received 37 assignments. 37 assignments in the sense 37 learners they have submitted their assignments. Okay, I was checking the assignments which were actually marked a copy to CPA THA. So I'll just read out the names for your benefit. And still there is a time I think to submit the assignments. The date has been extended. I will share you the details. Maybe it is July 15th, last date for submitting the assignments. Whoever wants to submit the assignments and go for the term and examinations, they are requested to submit the written assignments and as well as the practical. Practical assignments dates I will give you. Don't worry about that. We still have time for that because we have started late. So, as far as the written assignments are concerned for OVA 1, OVA 2, OTH 001 need to be submitted on or before 15th July of 2021 in order to appear for the examinations which are going to be held in the month of August. As on today, the university has decided to conduct the term and examinations. The time is very less, so if at all you want to attempt for the term and examination, you need to complete the assignments. That is the rule. It is compulsory that you should complete your assignment before going for the term and examination. That is one issue. And the second, I will just read out the names, just to make a point. If somebody is submitted and his or her name is not being spoken here, they can mark a copy to me at cpatha igno.ac.in. Okay. Just I'll read out the names. It will take hardly 2 minutes. On Mr. Dinesh Kumar, Savri Gaur, Kakoli Gaur, Prince Nagpal, Ankit Maurya, Rahul Singh Tanwar, Aditya Singh, Devolina Moitria, Aditya Meshram, Saurabh Bisht, Salman Ansari, Kumar Arjun, Himanshu Malik, Aprajita Roy, Himanshu Kashyap, Manish Parsoya, Janice Sharma, Ajit Kumar Ranjan, Pradeep Rajak Ravinder, Sunny Kumar Jha, Himanshu Malik, Dhruva Aryan, Sarfraz Alam, Shubham Kumar, Ravi Shankar Joshi, Simran Sinha, Atik Shah, Shreyas Bharadwaj, Monica Mehwal, Sri Karuna, Sri Karuna. So these are the names. I have started with the oldest to the latest. So this is the situation where I have received the assignments of OVA 1, OVA 2 and OTH 001. So that's all for the your information, and I would like to bring you to your notice that we should complete our assignments before we go for the term and examination, whether it is practical or whatever. And one more observation which I have to make is about the open scene. Open scene, I have received certain videos. I think one, two, three, four, five. Most probably five videos I have received. In five also there are repetitions. Like both the people who are doing it, both of them they have sent it to the videos to me. Uh, One is Rahul and Anjali sent by Janice. Janice is there. Okay. Rahul Singh Tamar is there. Rahul Singh Tanwar is there. Wonderful. Yes, sir. So what happens is I have already told you about the open scene rule. You are not supposed to add anything. You are not supposed to subtract anything from the text. In the sense, ki, if you see that uh, the way you have started, it is good. But what I'm saying is the prologue which you have made it.
already the lines are there. In addition to that, you are also trying to give some lines to that. That is not allowed. That is not allowed. In the sense that whatever the frame is given, let us say you are having only 2 lines to speak. Within that 2 lines, whatever you want to do, you do it and go. That's all. You are not supposed to add anything. How are you? तुम कुछ बात करना चाहते थे, बताओ ना क्या, अच्छा टाइम क्या हो गया, तुम यहाँ आराम से आ सकते थे, मुश्किल तो नहीं हुआ, ये नहीं. I know that you people are feeling maybe feeling uncomfortable to start the lines as they were given. Okay, that is none of our business. Our business is the lines are given and we are directly speaking. So that's why I told you that context is more important. What kind of a context? If suppose we are speaking these lines in a jovial manner, that is one situation. We are afraid of somebody else and we have started saying, I love you. I'm also loving you. But you are rushing your speech. Maybe आप बात करते करते कोई सुनने ले, या आप रश कर रहे हो सकता है, आप डरे हुए हो, आप हंसी मजाक कर रहे हो, या आप किसी को छेड़ रहे हो, मतलब you are not really in true love with them, but you want to say these lines. मैं तो प्यार करता हूँ, मैं भी प्यार करती, मतलब जैसे मजाकिया हो गया, हो सकता है ना, या फिर ये कोई लवर्स के बीच में ही जरूरी नहीं है. मैंने यही बोला था, it can happen between 2 friends, father and son, mother and ग्रैंडमदर के साथ एक छोटा सा बच्चा जाके बोल रहा है, ये भी हो सकता है. इसीलिए मैंने बोला कि बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है इसमें, बट द रूल पॉइंट इज यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग. एक अक्षर भी उसको ना जोड़ेंगे ना उससे निकालेंगे, क्योंकि उसकी परिधि, उसका जो क्या बोलते हैं, आउटलाइन इज दैट कि यू आर नॉट गोइंग टू पुट योर ब्रेन इनटू दैट इन द फॉर्म ऑफ एनी लाइंस. तो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने में क्या दिक्कतें आती हैं, इसको एज एन ए परफॉर्मर वी आर गोइंग टू टेस्ट इट. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इट हैपेंस विद राहुल और जनीस आल्सो. Walter D'Souza, he has sent his first, he has sent only both the lines he was speaking, but I suggested him that it should be done with the partners. Then he has sent one audio. That was good. Maybe because of the language problem, the lady which she was helping him was a bit difficulty. And Rajul Singh Tanwar, the same. Kumar Arjun and Aparajita, same problem with Salman Ansari. Salman Ansari is there, Aparajita is there in the team today. The problem is, you are also trying to add some lines and some words. So that is not allowed, Aparajita. Okay, sir. Because what I am saying is, we are doing it in a structured way. हमारे पास एक ही अक्षर है या फिर एक ही वर्ड है, उसी में हम मीनिंग लाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हो, है ना, उसी पे हम ट्राई करेंगे. ये आप कोशिश करेंगे, और बाकी लोग पता नहीं क्या किया, भगवान जाने. और मैं इस एक्सरसाइज को यहीं से छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं. तो आज का जो एक्सरसाइजेस हम प्लान कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट, टुडे वी आर गोइंग टू learn some exercises about concentration exercises. I already told you about the observation, concentration. May I say something, sir? Yeah, Sukhvinder, आपका वीडियो तो आया ही नहीं. Sir, I have sent the assignments. आपने मेरा असाइनमेंट वाली लिस्ट में नाम नहीं आया सर. हो सकता है. मैंने 12 जून को सर मैंने भेज दिया. एक मिनट रुक जाओ. सुखविंदर, हो सकता है 12 जून है, मैं चेक कर लेता हूँ. हाँ जी सर, 12 जून. अगर नहीं है तो उस कॉपी को फिर से मुझे एक बार मेल कर दो, ताकि ना हो जाए कोई दिक्कत. ठीक है. ओके सर. और सर वीडियो का ऐसा था कि थोड़ा सा मुझे मम्मी के साथ, मैंने आपको बताया था, उनकी तबीयत खराब थी तो जाना पड़ा. तो इस हफ्ते में आई वाज वेरी बिजी, और मैंने आज ही सुबह वीडियो बनाया था, बट मैं सेंड नहीं कर पाया. अपनी मदर के साथ बनाया है मैंने, और सिर्फ सर उसमें एक अमेंडमेंट किया है, तुम की जगह मैंने आप यूज किया है. उनको नहीं करना है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ भाई साहब. अच्छा, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं दोबारा उसको कर देता हूँ. हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, प्रोनाउंस करूंगा. आपका या मेरा कोई अधिकार नहीं है कि उसमें हम कोई छिड़कानी करें.
ओके सर, ओके। जैसा कोई मंत्र होता है, मंत्र पढ़ने में सपोज उसको उसी तरह से हम पढ़ेंगे ना, यस सर। जैसे जैसे राष्ट्रीय गान हो गया, उसमें तो हम कोई छिड़कानी नहीं कर सकते, ये भी उसी तरह का, बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो सर। स्ट्रक्चर इज ठीक लाइक है। दैट, आई वी कैन नॉट हेल्प। आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, बिकॉज उसी में हम काम कैसे करते हैं उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हेलो ओके सर, सर। एक्चुअली जो मेरी वीडियो में सर ठीक नहीं बनी है, वो मैं फिर से बना के भेज सकता हूँ प्रॉपर्ली? नहीं ठीक, मैं यही बोल रहा हूँ ना, ठीक बनी है नहीं बनी है इसके बारे में चर्चा ही नहीं है, हमारा अटेम्प्ट जो है ना वही ठीक है। इफ यू आर ओके सर। अटेम्प्टिंग इट, यू आर 100%, यू हैव डन द जॉब, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एक जो वो स्केल ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि थैंक यू। थिएटर में क्या होता है पता है ना, हाँ जी यहाँ सर। कोई बेसुरा आदमी नहीं होता है, जैसे संगीत में बिल्कुल सर। होते हैं, कोई गाना गा रहा बिल्कुल है, सर। वहां बोलते हैं बिल्कुल कि सर। सर आप तो बिल्कुल बेसुरे हो, आप गाना गाना नहीं सीख सकते, आप चाहिए। और यहाँ पे कैसा है ना, हर तरह का बंदा चाहिए, हर तरह का वॉइस चाहिए, हर तरह का बिल्कुल सर। थॉट प्रोसेस चाहिए, तो आप काम कीजिए, बस उसके बारे में, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। मैं हूं ना यहाँ बैठा हुआ, देखूंगा और बोलूंगा कि उसमें क्या बेहतर हो सकता है या बेहतर हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। और हाँ, और दूसरी बात, आज की बात जब हम करते हैं तो हम कुछ कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस को आज हम नोट करते हैं और उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू सम कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस which I am going to explain now, and you after the class or whenever you find time, you will be doing these exercises. The concentration part is most important. The two things will go side by side. One is concentration and as well as relaxation. The experiment shows that once you are relaxed, then only you can concentrate. And then when you are concentrating, then only you can relax. है ना, ये दोनों चीजें साइड बाय साइड जाती हैं। जैसे एवरी साइकोलॉजिकल जेस्चर में एक फिजिकल मूवमेंट भी होती है। अबाउट ए फिजिकल मूव, आफ्टर डूइंग एवरी फिजिकल मूवमेंट देयर विल बी ए साइकी, मतलब एक थॉट प्रोसेस होता है जब भी आपका बॉडी मूव करती है। हालांकि हम बहुत बार उसको रिस्ट्रिक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। मूवमेंट का मतलब सिर्फ आपके हाथ पैर में ही नहीं, शायद हो सकता है आपके आईब्रोज में भी कुछ एक्सप्रेशन आए, या फिर आपका फेस में भी आ जाए, हाँ, कहीं से भी कुछ एक्सप्रेशन जो फिजिकल से जुड़ा हुआ है वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है। बिकॉज इसीलिए बोलते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड, है ना। फेस कभी कभी बता देता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, बॉडी लैंग्वेज पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप कुछ बोलना चाहते हो। इसका मतलब एवरी साइकी, मतलब साइकोलॉजी इज देयर, मतलब थॉट प्रोसेस इज देयर once you make any kind of a movement. Okay, so today we are going to do some concentration exercise. The exercise is very simple, very simple. It looks very simple, but once you plan to do it, you will face some kind of problems to concentrate. Avoid that. We will be doing time and again, so that बार बार उसको ट्राई करने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि आप उसको कंट्रोल करने लगते हैं। Simple is now today we are focusing on the sound. Focusing on the sound. This is the name of the exercise. We are sitting on a chair or on the ground comfortably. No tension at any part of your body. Hands को आप बगल में रख सकते हैं या कैसे भी रख सकते हैं, कोई मुद्रा में भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने आंखें बंद भी कर सकते हैं, बंद कर लीजिए। और you are trying to listen the sounds in and out happening in your room or outside also. You are concentrating on only the sound part. The sound part में कैसे होता है कि loudest sound to the whitest sound. इसका मतलब क्या हुआ, जोर से कुछ आवाज आ रही है उससे लेकर छोटी छोटी आवाज जो भी कुछ बज रहा है, कोई बात भी कर रहा है, कहीं चम्मच भी कहीं गिर गया, या फिर कोई गाड़ी निकलने की भी आवाज आ रही है, आप उन चीजों के ऊपर ध्यान रखेंगे। आप उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा साउंड इस यहाँ मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आफ्टर 2 or 3 minutes, focus on the sound excluding everything. Focus on the sound excluding everything. In the sense कि only we are concentrating on the sound part, not on the visual part. In the sense कि we are closing our eyes and we are trying to listen to the sound which are being made in and out your room or outside of your room, whatever. अभी हम बैठ जाते हैं तो कुछ ना कुछ साउंड आता है। सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे बगल में फैन
चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है, और कुछ लोग बात कर रहे हैं, या कुछ गाड़ी निकलने की आवाज़ है, कहीं पर कुछ जानवर भौंकने का आवाज़ भी आ रहा है, या पंछियों का आवाज़ आ रही है, या फिर कोई भी आवाज़ आ रही है, उनको कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 2 मिनट के बाद आप ओपन योर आइज एंड ट्राई टू रिकलेक्ट वॉट एवर द साउंड्स यू हैव, ट्राई टू फोकस। अच्छा होगा कि एक पेन एंड पेंसिल लेकर आप उन चीज़ों को स्क्रिबल कीजिए, आपने ये सुना, ये सुना, ये सुना, and again you concentrate. Try to develop the concentration part using this exercise. This I call it as a focus on the sound. इसमें कोई difficulty होगी? Anybody find difficulty in that or any doubt? Any questions regarding this exercise? नहीं सर। नहीं ना? Thank you very much. अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम करते हैं कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। जैसे हमने कंसंट्रेशन एक्सरसाइज किया, अभी वी आर गोइंग टू डू सम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आवर हेड टू टो, यहाँ सिर से लेके पैर तक बॉडी को धीरे धीरे हम रिलैक्स करेंगे। वो कैसे होगा? वी विल स्टार्ट विथ आवर फेस, वी विल स्टार्ट विथ आवर फेस एंड गो अप टू द बॉटम लाइक आवर फुट। तो हम ये क्या करेंगे? वी विल क्रिएट टेंशन इन ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, will create tension in each part of our body and then relax for some time, and again keep make them the tense and then relax. So how it happens, like if you take for example face, you are making some kind of a tension, creating tension purposefully on your face. It can go for 10 to 15 seconds and then relax, completely relax. You understand what I'm saying? फेस को टेंशन में कुछ इस तरह का अपना आर्बिटरली पर्पसफुली एक टेंशन क्रिएट किया फेस में, वो 10 सेकंड तक आपने उसको होल्ड किया, उसके बाद उस टेंशन को रिलीज किया, so that your face muscles are relaxed. We have done it in oval exercises also, like we are stretching our face, like this is also one kind of a stretch. Ye, when we pronounce that alphabet ye, we were trying to do that exercise. If you remember correctly, I have forwarded one video also. In that also, ye, how to create tension on your face. Just to say ye, silently. You can count 10. Then relax your face. You are coming to normal. Your face becomes very, calm and quiet. Okay? ये फेस हो गया, and then you are coming to neck and shoulders. Neck and shoulders के ऊपर भी आप टेंस कर सकते हैं. Your neck is stiff, or shoulders are also like this. 10 seconds, and then you relax. And go on to your right hand and right arm, giving some press and relax. Similarly, you are going to do the entire body. Entire body के ऊपर हम इस तरह का प्रयोग करेंगे. राइट हैंड पे टेंस लाया है और आर्म पे भी लाए हैं. 10 सेकंड तक उसको होल्ड कीजिए. Then calm and quiet, you relax the hands. Feel relaxed from head to neck and shoulders and right hand. Now you imagine now that the self hypnotism, like you are relaxing your facial muscles. You are also relaxing your neck and shoulder part, and then coming to the left and right hands or arms, and then going down. Okay, your navel part, shoulders, stomach, and then leg, left arm, left leg, and the right leg, and left foot and right foot. Now this is the circle from head to toe. You are making some kind of involuntary kind of a stress in each of your body and trying to relax. Okay, एक सर्किल है कि सर से लेके पैर तक हमने आप एक एक्सरसाइज किया, एक सर्किल हो गया, फिर बाद में रिलैक्स फॉर सम टाइम एंड अगेन डू इट फॉर कपल ऑफ टाइम्स. एक 3 सर्किल हो सकते हैं, है ना. हेड टू टो, हेड टू टो, हेड टू टो, 3 सर्किल हम फिर से करेंगे. शायद हो सकता है सेकेंड टाइम हम जब करें तो 15 सेकंड के बजाय आप 10 सेकंड का ही उसका स्ट्रेस को फील करें और रिलैक्स करें. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी ए नॉर्मल, है ना, वेरी डिफिकल्ट टू बी. अब हम बैठे हैं तो बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं.
इसलिए हम एक एक्सरसाइज वो भी करते हैं कि सिट आइडियली। अब एक 10 लोगों के सामने आप एक चेयर डाल दिया, एंड आई विल आस्क समबडी टू कम हियर एंड सिट क्वाइटली। कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, नथिंग, न्यूट्रल, व्हाट वी कॉल इज अ न्यूट्रल. Neutral body position and a neutral facial expression is very difficult, because what happens when you go before a group of people sitting or performing and whatever doing or speaking, at least आपको लगता है कि कोई हमको देख रहा है, तो we will become conscious. जब when you become conscious, your automatically your body also become conscious, your voice also become conscious, even your thoughts are also becoming conscious. By once your thoughts are becoming very conscious, the way you speak, the way you move, the way you present your thoughts, all of them are, distracted. तो एक एक्टर को ये चाहिए कि कितने भी लोग हो आगे बैठे, there are thousands of people, we will think that there are nobody. That what we call is public solitude. A word coming, public solitude. अगर हम मैं हिंदी में इसको बताऊं तो समूह में एकांत. आप एक समूह में बैठे हैं मगर अपने आप में एकांत में बैठे. फॉर एग्जाम्पल, 2 lovers सिटिंग इन ए बेंच, पार्क में बैठे हैं, उनके अगल बगल में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बट दे आर नॉट वरीड, दे आर स्पीकिंग to themselves that nobody is observing. Similarly, if this scene is happening in an auditorium में हो रहा है, आगे ऑडियंस बैठे हैं, तो हमें तो यही बिलीव करते हैं कि आगे तो हमारे पास कोई बैठा ही नहीं है, हम दोनों अपने आप में बात कर रहे हैं, है ना. This is very private space where we are speaking, but this scene has to be performed for the audience. That is a different issue. But as an actor, we should feel that there is nobody is observing you. Otherwise, you cannot perform, isn't it? That kind of a quality when it comes when you are completely relaxed, when you can relax, when you can completely concentrate on what actions you are doing. So this is called public solitude. Public solitude, ab samajh gaye aap, there is a word, Stanislavski also gives this word time and again. He is saying that समूह में एकांत. आप एक समूह में काम करता है एक्टर, आप फिल्म में भी जाइए, थिएटर में भी जाइए, टेलीविजन में भी, आपके सामने सिर्फ कैमरा खड़ा हुआ है, देयर इज नोबडी, लाइटिंग लगाने वाले हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर है, चिल्ला रहा है, उधर से भी डायरेक्टर बैठे हुए हैं और फैन का साउंड आ रहा है या फिर कोई जनरेटर भी बज रहा है, आप अपने आप में मग्न हैं, आप अपना रोल करेंगे. वो स्थिति कैसे आएगी? दैट इज नोन एज पब्लिक सॉलिट्यूड. यू फॉरगेट दैट देयर इज समबडी एल्स इज एक्चुअली लुकिंग एट यू. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द पर्सन or the camera, which is your co-actor, or you feel that your camera is your co-actor and you are reacting to that. So that status is called as public solitude. उसके लिए हम क्यों concentration exercises और relaxation exercises को जितने types में, जितना तरीके से, जितना ज़्यादा हम करेंगे, we will get that strength, isn't it? एक बार करने से कुछ होगा नहीं, आप भी समझते हो. But as a time restrictions, we'll be giving a few exercises, but you need to practice time and again. Okay? Any doubt in this regard, the relaxation exercises and this public solitude? You can ask question, I will go further. Anyone? Okay. If there are no questions, I'll be moving forward. And the next exercise is called justifying our actions. Justifying our actions. Justifying our actions is, इसका मतलब क्या हुआ? अब जो भी एक्शन करते हैं उसको जस्टिफाई करना चाहिए. तो आपने हाथ ऐसे उठाया, क्यों उठाया? ये पेन ऐसे क्यों निकाला और एक क्या ऐसे क्यों लगाया कान में? या फिर जो भी आप एक्शन करेंगे स्टेज के ऊपर, या कोई भी एक्शन, यहाँ से आप यहाँ जाके किसी वस्तु को उठा रहे हैं या किस तरह से उठा रहे हैं, उसके लिए जस्टिफिकेशन होगा. If some irritating person is calling you, then the way you take the mobile, and that will be different. उसकी justification अलग होगी. And you are consciously waiting, somebody will call you at this time, and then as soon as that person calls you, your way of dealing with this mobile will be different. You understand what I'm saying? The context के ऊपर, जैसे हम किसी व्यक्ति का फोन का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करने के लिए हमें अच्छा लगता है, तो
the way we lift the mobile and will take the mobile and take the call and give the answer to that person will be different. If somebody is calling time and again, you don't want to speak to them, but again you are supposed to answer him, then the way you take it and you talk to him will be different. Then बताइए, बोलिए. There are some, your body will show कि what is your interest in that, or what is your rejection to that, what is your love, what is your hate. Okay, so you will be justifying your actions depending upon the actions. So now I am going to give you certain actions. एक एक्शन मैं आपको बताऊंगा, आप उसको जस्टिफाई करेंगे सिचुएशन के ऊपर. One patient is taking first steps after a prolonged disease. एक मरीज है, बहुत बीमार थे, वो बेड पे ही थे. जब बेड से निकले हैं पहली बार बहुत दिनों के बाद, लाइक 15-20 दिन सपोज, या 1 महीने बेड पे ही रहा है, और उसके बाद वो चलने की कोशिश कर रहे हैं. सपोज ही वांट टू, थोड़ा स्वस्थता आ गई है, तो देन ही वांट्स टू वॉक फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड डिसीजन. हाउ ही और शी इज गोइंग टू वॉक, दैट इज द नंबर 1 क्वेश्चन. द कॉन्टेक्स्ट इज गिवन, संदर्भ आपको दिया गया है कि किस पोजीशन में ये बंदा है या बंदी है, तो वो ये कैसे उसको एक्शन को परफॉर्म करेंगे. While you doing this exercise, you must justify. If you are walking speedily or if you are walking slow, whatever you want to do, you do it. But उस actions को आपको justify करना पड़ेगा. लगना चाहिए कि हाँ, ये बंदा इसलिए इस तरह से कर रहा है क्योंकि ये इस स्थिति से गुजर रहा है या गुजर रही है. समझ गए ना. And then second is a hunter. Hunter एक वो शिकारी है, वो अपने हंट को ढूंढ रहा है. एंड मेक ए पॉइंट कि अगर हम इस एक्शन को कर रहे हैं तो वी शुड नो व्हाट काइंड ऑफ हंटर वी आर एंड व्हाट वी आर गोइंग टू हंट. दैट इज आल्सो मोर इम्पोर्टेंट. मैं हंट कर रहा हूँ तो मैं ढूंढ रहा हूँ सर, ये नहीं होगा. आप किस तरह का हंटर हो, आपके हाथ में किस तरह का हथियार या जो भी साधन है, और आप किस चीज को देख रहे हैं कि किस चीज को पकड़ना चाहते हैं, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, तभी आप इस एक्शन को कर सकते हैं. समझ रहे हैं ना आप. अगर चाय पी रहे हैं, ये एक्शन मैंने बताया, तो क्या चाय ठंडी है या गर्म है, या किस तरह के कप में लिया गया है, और चाय कितना है उस कप में, पूरा भरा हुआ है या फिर आधा तक है, हाँ, उसका टेस्ट, वो ये पूरा हमें प्री डिसाइडेड करना चाहिए. और जो ट्रेन्ड एक्टर और नॉन ट्रेन्ड एक्टर या शौकीला एक्टर में यही फर्क होता है कि आप जो भी एक्शन कर रहे हो, पक्का आपको पता है कि आप इन चीजों में पूरी तरह से गुजर चुके हैं. देन ओनली यू आर गोइंग टू डू दिस एक्शन. ऐसा आर्बिट्रली आप नहीं करें, चाय पीना है, ले लिया, हो गया, दिस एक्शन इज कंप्लीटेड. तो आप इसी चीज को फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स ऐड करते जाएंगे. देन द पीपल विल नो दैट व्हाट काइंड ऑफ टी इट इज, व्हाट इज इट्स टेस्ट, और कितना भरा हुआ है, कितना गर्म है, कौन सा कप को कैसे आप पकड़ेंगे, ये पूरा डिटेल एक ट्रेंड एक्टर ही दे सकता है. एक डिटेल कैसे दे सकते हैं आप, जब आप अपने आप में यहाँ डिसाइड करेंगे, यहाँ उन चीजों की एक लिस्ट बनाएंगे, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा. ओके. एंड द थर्ड एक्शन इज समवन विद ए मैसिव हैंगओवर. बहुत सारा हैंगओवर हो रहा है उसको, वो पर्सन कैसे मूव करेगा. एंड मेक ए पॉइंट, जो भी एक्शन मैं बता रहा हूँ उनमें से कोई लाइन नहीं होगा, आप कोई बड़बड़ाएंगे नहीं. मेरे हैंगओवर बोलते ही फिर लोग शुरू हो जाएंगे कि रात में इतना हो गया था कि मेरा बॉडी, ये नहीं चलेगा. डोंट सपोर्ट योर एक्शंस विद योर लाइन्स प्लीज. लाइन्स बोलने का टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा आपको उस जब बोलना. ओके. नाउ द नेक्स्ट फोर्थ एक्शन इज ए बेबी लर्निंग टू वॉक. एक छोटा सा बच्चा या बच्ची है, वो वॉक करने की कोशिश कर रही है, पहली बार वॉक करने का सीख रही है. मतलब वॉक करना कैसा होता है, वो होता है ना, कभी अपने आप एक छोटा बच्चा खड़ा हो जाता है और चलना शुरू कर देता है, या किसी चीज को पकड़ते पकड़ते एकदम उस चीज को छोड़ के फिर अपने बॉडी को बैलेंस करता है, 2 कदम आगे बढ़ने लगता है, उसके बाद फिर चलना शुरू. तो इस तरह का एक्शन अगर होता है तो कैसा हो सकता है. ठीक है. द नेक्स्ट फिफ्थ एक्शन इज वन पर्सन हु इज अप्रोचिंग समवन हु इज द ऑपोजिट सेक्स. इन द सेंस कि कोई फीमेल है, शी इज अप्रोचिंग टू सम पर्सन हु इज अ मेल, or a male person approaching someone. The approaching person will be like the person who is being approached will be a female. Okay. And a person who is fully intoxicated and trying to be sober.
trying to be sober. That is the other. And the next is sixth and seventh is an intruder. An intruder, आगंतुक है, breaking into someone's house. कोई आदमी किसी दूसरों के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो how he or she will be doing it. Okay. And then eighth action is a fashion model on the runway. A fashion model on the runway or the ramp. रैंप के ऊपर कोई फैशन करने वाले मॉडल जो दे वे वैप, whether it is male or female, you can decide and you can do it. That is not a problem. The ninth action is an elderly person crossing the road. An elderly person crossing the road. Okay. And the last but not least, 10th action, a troublesome guy or a girl approaching to their teacher. Approaching to their teacher or approaching to their principal's room. Suppose principal's के रूम में जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स के रूम के सामने या उस ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं. The boy and girl is a troublesome. They are not शांति से बैठने वाले नहीं हैं. But make a point, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, whatever the 10 actions I am saying, you have to justify your actions, whatever you are doing. In the sense, you are going to punch each and every action and the movement and the gesture while you are doing it. उसके लिए आप अपने आप को प्रैक्टिस में रखिए. आप जो करना चाहते हैं कीजिएगा. Then only you will do it for number of times. If you want to record it, you record it. If you want to send it to me, send it. Otherwise, you can practice this for your purpose. This is justifying action and as well as putting some thought into that. And the third major point is punctuating your actions. You know punctuation. कामा, पुलिस स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क्स, हम जैसे जब लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट उसमें हम यूज करते हैं, तो उसी तरह मूवमेंट्स के लिए भी हम पंक्चुएट करते हैं. यहाँ से स्पीड से आएगा, यहाँ रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे चलेगा, फिर थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाएगा, फिर अपने लेफ्ट हैंड से जो भी चीज उठाएगा और उसे स्मेल करेगा, फेंक देगा. मतलब whatever the action you want to do it, you fix whatever you want to do it in unit by unit. Then you combine all those units, complete that action एंड उसको एक क्या बोलते हैं, एक पूर्णता की तरह, एक कंप्लीशन को ले जाइए. जैसे मैं बोला था, पेशेंट टेकिंग फर्स्ट स्टेप्स, 2 कदम चल के गिर गया, ऐसा थोड़े नहीं. तो उस एक्शन को कंप्लीट करना चाहिए. पहले भी मैंने बोला था कि देयर विल बी एन स्टार्टिंग एक्शन, देयर विल बी एन मिडिल एक्शन एंड देयर विल बी एन एंड एक्शन फॉर ईच एक्शन. हर एक्शन में आपको 3 चीज चाहिए. एक स्टार्टिंग पॉइंट, आधा तक गया हुआ एक्शन, देन फाइनली व्हाट हैपेंड. That fellow could able to walk, that fellow is fall down because of weakness, or somebody else came and holded him and taken back him to the bed, whatever. This is the finishing action, third finishing action, isn't it? He is trying, let us say, imagine he is trying to get up and he could able to get up. That is one action. He could able to go for 1 or 2 steps. That is the second action. The third action will be, usko energy nahi hai, he is going to fall. And he has fallen on the ground. That is the finishing action. ये 3 हो गए. और एक one भावना ये है कि he is not able to hold his body and somebody else came and rescued him and taken back to the bed. There is no helper in this. You have to do the other man's action also. And make a point, don't add any lines for God's sake. कोई भी यहाँ डायलॉग बाजी मत कीजिएगा. अभी मैं शिकारी हूँ, मैं उसको देखता हूँ, मैं यहाँ से गोली मारता हूँ, वो मर जाएगा, मैं अपने जेब में डालूंगा, ये नहीं चलेगा. You understand? Don't put any lines into that. That will spoil the action. Because हम बोलते बोलते हमारा आवाज इतना अच्छा लगता है अपने आप में, तो हम बोलते बोलते हम जो एक्शन इंपॉर्टेंट है उसको करना भूल जाते हैं. Okay? So these are 10 actions. I'm going to type these actions in the group. Don't worry. So these are the actions which I'm taking as doing the action with a purpose. Justifying your actions. Justifying. हर एक्शन को आप जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने इस एक्शन को क्यों किया, है ना. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. एनी डाउट अबाउट इन दिस जस्टिफाइंग योर एक्शंस, यू कैन आस्क. जस्टिफिकेशन. नो डाउट सर. अर्जुन कुमार के लिए कोई डाउट नहीं है. और कोई बंधु? we need to use props. You can. प्रॉप्स यूज करने में देखिए अच्छा होता है कि आपको एक बिलीवेबिलिटी हो जाती है.
अभी एक मोबाइल यूज करना चाहते हैं तो कीजिएगा, ताकि आप मोबाइल के बारे में इतना परफेक्शन नहीं है तो डोंट डू एनी माइम काइंड ऑफ ए थिंग। यू कैन यूज द प्रॉपर्टी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, बाद में आप कर सकते हैं, अच्छी बात है। आई सपोर्ट। या एनी अदर क्वेश्चन? सर 8वां बता दीजिए, मैं लिख नहीं पाया। ए फैशन मॉडल रनिंग और वॉकिंग ऑन द रनवे। मैं टाइप करूंगा जोशी जी, इसको जी। मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। ऑल दीज एक्शंस विल बी आई एम गोइंग टू गिव यू, डोंट वरी। अच्छा सर, इनके सभी के वीडियो बना के बेचना है? हाँ, आप जितना बना सकते हैं बीजिएगा। 10 एक्शंस है, अच्छा खासा टाइम मिलेगा आपको 1 वीक में, नेक्स्ट सैटरडे तक। ठीक है जी सर, थैंक यू। ये मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं तो बोल ही जा रहा हूँ कि ये करो वो करो, बट कोई करता नहीं है। कुछ लोग भेजते हैं कि 2-3 लोगों का रिस्पांस होता है, बाकी लोग पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये मुझे पता नहीं होता है। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, यू नो, वी कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट वी कैन नॉट मेक इट ड्रिंक, है ना। हम पानी तक ले जा सकते हैं, मैं पानी तक आपको ले जा सकता हूँ, पानी पीना नहीं पीना ये आपके हाथ में है ना। सर वो सर उसका अभ्यास तो होता है, पर वो परफेक्शन में वीडियो का थोड़ा सा इसलिए एकदम हिम्मत नहीं हो जोशी जी, मैं पहली बार यही कर रहा हूँ, परफेक्शन, देयर इज नो परफेक्ट मैन इन दिस वर्ल्ड, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये दोनों चीजें दुविधा में डाल देते हैं लोगों को, ये क्या है बात फिर। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आप अगर इस काम को करते हैं तो आप परफेक्ट हो गए, यही समझ लीजिए। पहले तो शुरुआत कीजिए, परफेक्शन तो बात की बात है। हम परफेक्ट होंगे नहीं होंगे इसी डर से हम उस एक्शन को ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो मैं ये चाह रहा हूँ आप लोग कीजिएगा, जितना आप करना चाहते हैं कर ले। अगर कोई वीडियो मुझे शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, देयर इज नो इश्यू। नहीं करना है, प्रैक्टिस ही करना है, तभी ठीक है। मगर मैं चाहता हूँ कि इन एक्शंस को इस तरह से किया जाए। एनी अदर? जी सर, थैंक यू। जी। हेलो सर, हाँ, इट्स मी जानवी। या सर, मुझे ये पूछना था कि हम वीडियो आपको मेल करने के बजाय आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब मेल कर रहे हैं तो उसमें कंप्रेस बहुत ज़्यादा करके क्वालिटी गंदा होता है। जानवी कर दो। ओके, थैंक यू सर। डन, नो इश्यू। और कोई? एंड सर, वन मोर थिंग, मैंने 2 बार असाइनमेंट सबमिट किया है, क्योंकि एक बार मैंने जो स्पेस था वो फिल नहीं किया था, तो अभी आपने नाम नहीं आया मेरा लिस्ट में। तो नाम नहीं आया जानवी का, तो या जानवी जिलवाने नहीं आया तो एक बार भेज दो तुम अपना। हाँ जी सर। जानवी एक बार फिर से मेल कर दो, ठीक है? जी सर। नो जी, प्रॉब्लम। बिकॉज भाई अभी मेरे पास 31 आ गए हैं, कुछ और भी लोग हैं कंप्लेंट कर रहे हैं कि मैंने भी, जैसे सुखविंदर भी बोल रहे हैं, तो जी अभी हो सर। गया अगर 31, 32, 33 पीपल हैव सेंड इट, दैट इज अ गुड नंबर। ओके, तो जी सर। आप फिर से कर दीजिए, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। मैं भी जी, चेक करता थैंक हूँ, यू क्योंकि सर। मैं मोबाइल से चेक कर रहा था, हाँ जी हो सर। सकता है कि नेम कहीं मिस हो जाए। ठीक है, यस सर, यस, थैंक यू सर। डन। हेलो सर। अर्जुन, सर एक्चुअली असाइनमेंट में मेरा भी नाम नहीं आया था, मैंने 1 जून को असाइनमेंट सबमिट की थी। 1 जून, अर्जुन का नाम तो बुलाया मैंने, अच्छा सर, सॉरी सर। मुझे जहाँ तक याद है, वैसे मैं नोट कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। राइट। और कोई? अजी, ओके, आई चेक। सर सॉरी सर, मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया सेशन, तो हाँ। सर आप बता सकते हैं मेरा नाम श्रेयस भारद्वाज है क्या सर असाइनमेंट पर? हाँ, तुम्हारा नाम पुकारा हूँ मैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। Okay guys, see you. Thank you very much for the session. See you all people in the next counseling session. Anything else? Janice. I am not able to get your voice. Hello? Yeah, there is some disturbance. There is some disturbance from your side. Am I audible, sir?
हाँ, yeah, tell me. सर मैं भी लेट क्लास में आई, सो सर आपका नाम पुकारा मैंने. ओके हाँ. ओके सर, थैंक यू. Janice. या हाँ. जेनिस. Okay. Okay. थैंक यू सर. Right. What is your exact pronunciation? इट्स जेनिस. Janice. Janice. या Okay. या जेनिस. Janice. यस सर. Janice. Right. यस सर. Done. Thank you. Thank you very much. And see you in the next class. All of you. Good day. Take Thank care. you, sir. थैंक यू सर. थैंक यू सर. नमस्कार सर. थैंक यू. Namaskar. Thank you, sir. Namaskar. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Namaskar. नमस्कार. Good night, sir. Good night.